آیت تک ہمارا بی پارٹ ختم ہوا ہے. سی پارٹ ہمارا اب یہ آیت نمبر 19 سے میں سٹارٹ کروں گی. آیت نمبر 19 سے لے کے 23 تک دیکھیے. یہ مومن اور کافر دو فریق ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کے بارے میں ایک دوسرے سے جھگڑا کیا. اب اس کا فیصلہ اس طرح ہوگا کہ جن لوگوں نے کفر اپنایا ان کے لیے آگ کے کپڑے تراشے جائیں گے. ان کے سروں پر اوپر سے کھولتا ہوا پانی چھوڑا جائے گا جس سے ان کے پیٹ اندر کی ہر چیزیں اور کھالیں گل جائیں گی. اللہم لا جعلنا منہم. اور ان کے لیے لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے. جب کبھی تکلیف سے تنگ آ کر وہ اس سے نکلنا چاہیں گے تو انہیں پھر اسی میں لوٹا دیا جائے گا کہ چکھو جلتی آگ کا مزہ. دوسری طرف جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں اللہ ان کو اپنی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, جہاں انہیں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور موتیوں سے سجایا جائے گا, اور جہاں ان کا لباس ریشم کا ہوگا. اللہم جعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں جنتیوں میں سے بنائے. آگے دیکھیے آیت نمبر 24 سے لے کے 26 تک. اور وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کی رسائی پاکیزہ بات یعنی کلمہ توحید تک ہو گئی تھی اور وہ اس خدا کے راستے تک پہنچ گئے تھے جو ہر تعریف کا مستحق ہے. بے شک وہ لوگ سزا کے مستحق ہیں جنہوں نے کفر اپنا لیا اور جو دوسروں کو اللہ کے راستے سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جسے ہم نے لوگوں کے لیے ایسا بنایا ہے کہ اس میں وہاں کے باشندے اور باہر سے آنے والے سب برابر ہیں. یہ مسجد حرام کی بات ہو رہی نا. اور جو کوئی شخص ظلم کر کے ٹیڑھی راہ نکالے گا ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے. اور یاد کرو وقت جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اس گھر یعنی خانہ کعبہ کی جگہ بتا دی تھی اور یہ ہدایت دی تھی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا اور میرے گھر کو ان لوگوں کے لیے پاک رکھنا جو یہاں طواف کریں اور عبادت کے لیے کھڑے ہونا اور رکوع سجدے بجا لانا. اب یہ حضرت ابراہیم کا جو ہے یہ واقعہ پہلے بھی سارا یہ تقریباً گزر چکا ہے اور کافی ڈیٹیل میں نے الحمدللہ کیا تھا, تو اس کی دوبارہ ڈیٹیل دینے کی ضرورت نہیں ہے. بس صرف یہ اتنا سن لینا کافی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا انہوں نے اس کو پورا کیا تھا, اور آج تمام امت مسلمہ کا یہ فرض ہے کہ اس جگہ کی حفاظت کریں اور اس کے جو رکوع سجود اور طواف کرنے والوں کے لیے اس کو پاک اور صاف رکھیں. اور یہاں جب آیات ہیں تو بہت زیادہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں بھی کریں کیونکہ ان آیات پہ مزید رک کر مزید دل جو ہے وہ ہوتا ہے. اللہ سے بس دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس گھر کے دروازے ہمارے لیے کھول دے جو آپ کی ناراضگی سے بند ہو گئے ہیں, اور آج ہم اسے دور سے دیکھ کر ہمارا دل جو ہے اس کو دیکھ کے تڑپ رہا ہے کہ وہ جگہ خالی ہو گئی ہے کہ حضرت ابراہیم نے کتنی قربانیوں کے بعد یہ گھر بنایا تھا ہمارے لیے, اور آج وہ جگہ کیسی وہ ہو گئی ہے ناباد. میں تو آج کل ایسے کوئی وہ دیکھتی بھی نہیں کیونکہ اس سے پھر دل بہت خفا ہوتا ہے اور بہت رونا آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کیوں ہوا, کیا ہم نے گناہ کیا ہے کہ اس کی پاداش میں آپ کے گھر کو ہم اس طرح بے رونق دیکھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد از جلد اس گھر کو دوبارہ اسی رونقوں کے ساتھ آباد کر دے. اور لوگوں میں حج کا اعلان کر دو کہ وہ تمہارے پاس پیدل آئیں اور دور دراز کے راستوں سے سفر کرنے والی ان اونٹنیوں پر سوار ہو کر آئیں جو لمبے سفر دبلی ہو گئی ہوں. آیت نمبر 29 تک دیکھیں تاکہ وہ ان فوائد کو آنکھوں سے دیکھیں جو ان کے لیے رکھے گئے ہیں, اور متعین دنوں میں چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اللہ نے انہیں عطا کیے ہیں. چنانچہ مسلمانوں ان جانوروں میں سے خود بھی کھاؤ اور تنگ دست محتاج کو بھی کھلاؤ. پھر حج کرنے والے لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل دور کریں اور اپنی منتیں پوری کریں اور اس بیت عتیق کا طواف کریں. آگے دیکھیں آیت نمبر 30 اور 31 دیکھ لیجیے گا. یہ ساری باتیں یاد رکھو, اور جو شخص ان چیزوں کی تعظیم کرے گا جن کو اللہ نے حرمت دی ہے تو اس کے حق میں یہ عمل اس کے پروردگار کے نزدیک بہت بہتر ہے. سارے مویشی تمہارے لیے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان جانوروں کے جن کی تفصیل تمہیں پڑھ کر سنا دی گئی, لہٰذا بتوں کی گندگی سے اور جھوٹی بات سے اس طرح بچو کہ تم یکسوئی کے ساتھ اللہ کی طرف رخیے, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ مانو. اور جو شخص اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا, پھر یا تو پرندے اسے چک لے جائیں یا ہوا اسے کہیں دور لے جا کر پھینک دے. آگے دیکھیں آیت نمبر ہماری ہے 32 سے 34 تک. یہ ساری باتیں یاد رکھو, اور جو شخص اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے وَمَن يَعْظِمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ, جو شخص اللہ کے شاعر کی تعظیم کرے تو یہ بات دلوں کے تقویٰ سے حاصل ہوتی ہے. یعنی اگر دلوں میں تقویٰ ہوگا تو ہم شاعر کا بھی احترام کریں گے. تمہیں ایک معین
मुअय्यन मुद्दत तक इन जानवरों से फ़वाइद हासिल करने का हक़ है, फिर उनके हलाल होने की मंजिल उसी कदीम घर यानी खाना काबा के आसपास है। और हमने हर उम्मत के लिए कुर्बानी इस गर्ज़ के लिए मुकर्रर की है कि वो इन मवेशियों पर अल्लाह का नाम लें जो अल्लाह ने उन्हें अनायत की हैं। लिहाजा तुम्हारा खुदा बस एक ही खुदा है, चुनाचे तुम उसकी फरमाबरदारी करो और खुशखबरी सुना दो उन लोगों को जिनके दिल अल्लाह के आगे झुके रहते हैं। अच्छा, शायर जो है ना, इसमें ज़रा देख लें कि शायर में क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। शायर के मायने हैं, आयत नंबर ये हमारी है आयत नंबर 32 में देखिए, आयत 32 शायर की ताज़ीम करे वो अलामतें जिनको देखकर कोई दूसरी चीज़ याद आ जाए, यानी अल्लाह ताला की जो इबादतें वाजिब करार दी हैं और ख़ास तौर पर जिन मकामात पर हज की इबादत मुकर्रर फरमाई है वो सब अल्लाह ताला की शायर के अंदर दाखिल हैं और उनकी ताज़ीम जो है वो ईमान का तकाज़ा है। थोड़ा सा मैं यहाँ बस इतना इसको टच ही करूँगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगी कि शायर अल्लाह में जो चीज़ें आ जाती हैं जब हम हरम जाते हैं, ये जाते थे हज पे, उम्रे पे, इंशाअल्लाह अल्लाह आगे भी ले जाए, तो आप देखें वहाँ पर भी शायर अल्लाह की बहुत नाफरमानियाँ और बेहुरमती होती है ना। जा नमाज़ें हैं, कुरान पाक है, तस्बीहां हैं, किस तरह से लोग उनको अपने सामने या पाँवों के नीचे भी बाज़ दफ़ा तस्बीहों को, जा नमाज़ों को रोंद कर गुज़र रहे होते हैं। तो ज़ाहिर है ये भी नाक़दरी, पता नहीं अल्लाह बेहतर जाने कि हमसे क्या ऐसे नाक़दरी हुई है, कोई बेहुरमती हुई है जो ऐसा हुआ है। बहरहाल अल्लाह ताला हमें सबको माफ़ फरमाए। आयत नंबर 35 से 37 तक देखिए, जिनका हाल ये कि जब उनके सामने अल्लाह का ज़िक्र किया जाता है तो उनके दिलों पर रोब तारी हो जाता है और जो रिज़्क़ हमने उन्हें दिया है उसमें से अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करते हैं। और कुर्बानी के ऊँट और गाय को हमने तुम्हारे लिए अल्लाह के शायर में शामिल किया है, यानी कि ये जो ऊँट होते हैं और गाय ये भी सब किस्में हैं, शायर अल्लाह में से हैं जो कुर्बानी के होते हैं। तुम्हारे लिए इनमें भलाई है, चुनाचे जब वो एक कतार में खड़े हों उन पर अल्लाह का नाम लो, फिर ज़िबा करो, यानी बिस्मिल्लाह पढ़े बगैर कुर्बानी नहीं करनी चाहिए। चुनाचे जब उनके पहलू ज़मीन पर गिर जाएं तो उनके गोश्त में से खुद भी खाओ और उनके मोहताजों को भी खिलाओ। देखें, ऊँट की कुर्बानी का कुरान पाक में बाकायदा अल्लाह ताला ने जो है हमें हुक्म दिया है और उसका तरीका भी सिखाया है कि किस तरह जो है एक कतार में खड़े करके उन पर बिस्मिल्लाह पढ़ो, फिर उन्हें साइड से ज़िबा करो, यानी जो जिस तरह उन्हें नेज़ा मार के गिराया जाता है, फिर उनको गिरा के फिर उनको जो है काटा जाता है। और उन महताजों को भी खिलाओ जो सब्र से बैठें और उनको भी जो अपनी हाजत ज़ाहिर करें। और उन जानवरों को हमने इसी तरह तुम्हारे ताबे कर दिया ताकि तुम शुक्रगुज़ार बनो। अल्लाह को ना उनका गोश्त पहुँचता है ना उनका खून, लेकिन इसके पास तुम्हारा तक़वा पहुँचता है। हमने ये जानवर इसी तरह ताबे कर दिए हैं ताकि तुम इस पर अल्लाह की तकबीर बयान करो कि उसने तुम्हें हिदायत अता की, और जो लोग खुश उसलूबी से नेक अमल करते रहें उन्हें खुशखबरी दे दो। यहाँ ये सारा हज का और कुर्बानी वग़ैरह का है। इंशाअल्लाह अल्लाह ने अगर ज़िंदगी बख़ैर रही और हज का मौका आया तो फिर उसमें हम डिटेल इस पे इंशाअल्लाह ताला लेक्चर करेंगे। अभी सिर्फ ये इतना ही पढ़ लेना काफ़ी है हमारे लिए। आगे देख लीजिएगा, आयत नंबर 38 से 41 तक देखें। बेशक अल्लाह उन लोगों का दिफ़ा करेगा जो ईमान ले आए, यकीन जानो कि अल्लाह किसी नाशुक्रे को पसंद नहीं करता। जिन लोगों से जंग की जा रही है उन्हें इजाज़त दी जाती है कि वो अपने दिफ़ा में लड़ें क्योंकि उन पर जुल्म किया गया है। ये अब मदीना में जो मुसलमानों को इजाज़त देती गई थी ना कि कुफ़ार से वो मुकाबला कर सकते हैं, अगर वो लड़ें तो तुम भी उनसे लड़ो। और यकीन रखो कि अल्लाह उनको फ़तह दिलाने पर पूरी तरह कादिर है। ये वो लोग हैं जिन्हें सिर्फ़ इतनी बात पर अपने घरों से नाहक निकाला गया कि उन्होंने ये कहा कि अल्लाह हमारा परवरदिगार है। और अगर अल्लाह लोगों के गिरोह को दूसरों के ज़रिए दफ़ा ना करता रहता तो खानकाहें और कलीसिया इबादत गाहें, मस्जिदें जिनमें अल्लाह का कसरत से ज़िक्र किया जाता है, सब मिस्मार कर दी जाती। और अल्लाह ज़रूर उन लोगों की मदद करेगा जो उनके दीन की मदद करेंगे। बिलाशुबा अल्लाह बड़ी क़ुव्वत वाला है। ये देखें, ये बहुत अहम आयत है ना, आयत नंबर 40 के वलियंसुरन्नल्लाहु मय्यंसुरु इन्नल्लाहा लक़विय्युन अज़ीज़, कि अल्लाह उनकी मदद करता है जो अल्लाह की मदद करते हैं। और ये ऐसे लोग हैं कि हम उन्हें अगर ज़मीन में इक़्तिदार बख्शें तो नमाज़ कायम करें और ज़कात दें और लोगों को नेकी की ताकीद करें और बुराई से रोकें, और तमाम कामों का अंजाम अल्लाह ही के कब्ज़े में है। आगे देखिए, आयत नंबर हमारी ये है
आयत नंबर 42 से देखिए 46 तक। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये लोग तुम्हें झुठलाते हैं तो इनसे पहले नूह की कौम और आद समूद की कौमें अपने अपने पैगंबरों को झुठला चुकी हैं। नीज़ इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कौम और लूत अलैहिस्सलाम की कौम और मदैन के लोग भी, और मूसा अलैहिस्सलाम को भी झुठलाया गया था। चुनांचे इन काफिरों को मैंने कुछ ढील दी, फिर उन्हें पकड़ ही लिया। अब देख लो कि मेरी पकड़ कैसी थी। गर्ज कितनी बस्तियाँ थीं जिनको हमने उस वक्त हलाक किया जब वो जुल्म कर रही थीं। चुनांचे वो अपनी छतों के बल गिरी पड़ी रह गईं, और कितने ही कुएँ जो अब बेकार पड़े हैं, और कितने पक्के बने हुए महल जो खंडर बन चुके हैं। तो क्या ये लोग ज़मीन में चले फिरे नहीं हैं जिससे उन्हें वो दिल हासिल होते जो उन्हें समझ दे सकते, या ऐसे कान हासिल होते कि जिनसे वो सुन सकते। हकीकत यह है कि इनकी आँखें अंधी हैं। अफलम यसिरु फिल अर्द फतकून लहुम क़ुलूबुन यअक़िलून बिहा औ आज़ानुन यस्मऊन बिहा फ़इन्नहा ला तअमल अब्सार वलकिन तअमल क़ुलूबुल लती फ़िस सुदूर। जिनसे वो सुन सकते। हकीकत यह है कि आँखें अंधी नहीं होती बल्कि वो दिल अंधे हो जाते हैं जो सीनों के अंदर हैं। अब इनकी डिटेल पूरी पीछे हम पढ़ चुके हैं, इसलिए इसका सिर्फ मैंने अब तर्जुमा पढ़ा है। आगे देखिए आयत नंबर 47 और 48। और ये लोग तुमसे अज़ाब में जल्दी करते हैं मुतालबा, हालांकि अल्लाह अपने वादे के हरगिज़ ख़िलाफ़ नहीं करता। और यकीन जानो कि तुम्हारे रब के यहाँ का एक दिन गिनती के मुताबिक 1000 साल की तरह का होता है। और कितनी ही बस्तियाँ ऐसी थीं जिन्हें मैंने मोहलत दी और वो जुल्म करते रहे, फिर मैंने उन्हें पकड़ लिया, और सबको आखिरकार मेरे पास ही लौटना होगा। आगे देखिए आयत नंबर 49 से 52 तक देख लीजिएगा। और ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कह दो कि ए लोगों में तुम्हें वजाहत के साथ ख़बरदार करने वाला हूँ। फिर जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल करने लगें तो उनके लिए मग़फ़िरत है और बाइज़्ज़त रोज़ी है। और जिन लोगों ने हमारी निशानियों को नीचा दिखाने के लिए दौड़ धूप की तो वो दोज़ख के बासी हैं। ए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुमसे पहले हमने जब भी कोई रसूल या नबी भेजा, इसके साथ ये वाक़या ज़रूर हुआ कि जब उसने अल्लाह का कलाम पढ़ा तो शैतान ने उसके पढ़ने के साथ ही कुफ़ार के ज़रिए कोई ना कोई रुकावट उसमें डाल दी, और शैतान रुकावट डालता है। वमा अरसल मिन क़ब्लिका मिन रसूलिन वला नबिय्यिन इल्ला इज़ा तमन्ना अलक़ा शैतानु फ़ी उमनिय्यतिही फ़यंसख़ुल्लाहु मा युल्क़ि शैतानु थुम्मा युहकिमुल्लाहु आयातिही वल्लाहु अलीमुन हकीम। कुफ़ार के दिलों में कोई रुकावट डाल दी, फिर जो रुकावट शैतान डालता है अल्लाह उसे दूर कर देता है, फिर अपनी आयतों को ज़्यादा मजबूत कर देता है। और अल्लाह बड़ी इल्म वाला और बड़ी हिकमत वाला है। इसमें थोड़ा सा यहाँ पर हम आयत नंबर 52 जो है इसके हवाले से इसकी तफसीर देखते हैं। आंज़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखें, इसमें तसल्ली दी जा रही है कि आप मुखालफिन की तरफ से जिन शक़ूक़ व शुबहात का इज़हार हो रही कोई नई बात नहीं है। यानी जितने भी पहले पैगंबर आए हैं उन सब के साथ ऐसा हुआ कि जब वो लोगों को अल्लाह ताला का पैगाम यानी कलाम पढ़कर सुनाते थे तो शैतान काफिरों के दिलों में क्या करता था, शक़ूक़ व शुबहात डाल देता था, जिसकी बिना पर वो लोग ईमान नहीं लाते थे। लेकिन चूँकि ये शक़ूक़ व शुबहात असल में बेबुनियाद होते थे, इसलिए अल्लाह ने इनका कोई असर मुखलिस मुसलमानों पे बाकी नहीं रहने दिया, बल्कि उन्हें निस्तो नाबूद कर दिया। इस आयत का जो है इस तरह भी एक मतलब है कि तुमसे पहले हमने जो कोई नबी या रसूल भेजा तो उसके साथ यही हुआ कि जब उसने कोई तमन्ना की तो शैतान ने उसकी तमन्ना में कोई ना कोई रखना डाल दिया। फिर शैतान जो रखना डालता है वो अल्लाह ताला ख़त्म कर देता है और अपनी आयतों को और ज़्यादा मजबूत करके बंदों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर लेता है। अंबिया कराम अपने कौम की इस्लाह के लिए किस बात की तमन्ना किया करते थे, मगर जब शुरू में शैतान इस तमन्ना के पूरे होने में कोई रुकावट पैदा कर देता था, लेकिन आखिरकार अल्लाह ताला इस रुकावट को दूर फरमाकर इन आयतों को मुस्तहकम बना देते थे जिनमें अंबिया कराम की मदद की बशारत दी गई थी। अलबत्ता शैतान ने जो रुकावट डाली थी वो काफ़िर लोग जिनके दिलों में रोग है उसे अंबिया कराम के ख़िलाफ़ दलील के तौर पर पेश करके फितने में मुब्तला हो जाते थे। लेकिन जो अल्लाह के बंदे हैं ज़ाहिर अल्लाह की मदद उनके साथ होती है, अल्लाह ताला शैतान को गालिब नहीं आने देते। आयत नंबर 53 से 55 तक देखिए।
یہ شیطان نے رکاوٹ اس لیے ڈالی تاکہ جو رکاوٹ شیطان نے ڈالی تھی اللہ اس سے ان لوگوں کے فتنے بنا دے جن کے دلوں میں روگ ہے اور جن کے دل سخت ہیں۔ اور یقین جانو کہ یہ ظالم لوگ مخالفت میں بہت دور چلے گئے ہیں، اور اس رکاوٹ کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے دور کیا تاکہ جن لوگوں کو علم عطا ہوا ہے وہ جان لیں کہ یہی کلام برحق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، پھر اس پر ایمان لائیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ اور یقین رکھو کہ اللہ ایمان والوں کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والا ہے، اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا وہ اس کلام کی طرف سے برابر شک میں پڑے ہیں، یہاں تک کہ ان پر اچانک قیامت آ جائے، ایسے دن کا عذاب ان پر آ پہنچے جو ان کے لیے کسی بھلائی کو جنم دینے کی صلاحیت سے خالی ہو۔ آیت نمبر 56 سے 60 تک دیکھیے۔ بادشاہی اس دن اللہ کی ہوگی، بادشاہی اس دن اللہ ہی کی ہوگی اور وہ اس کے درمیان فیصلہ کرے گا۔ چنانچہ جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں وہ نعمتوں کے باغات میں ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا ہماری آیتوں کو جھٹلائے تو ایسے لوگوں کے لیے ذلت والا عذاب ہوگا۔ اور جن لوگوں نے اللہ کے راستے میں ہجرت کی پھر قتل کر دیے گئے، ان کا انتقال ہو گیا تو اللہ انہیں ضرور اچھا رزق دے گا، یعنی شہادت کا درجہ دے گا۔ اور یقین رکھو کہ اللہ ہی بہترین رزق دینے والا ہے، اور وہ انہیں ایسی جگہ سے رزق پہنچائے گا جس سے وہ خوش ہو جائیں، اور اللہ یقیناً سننے والا، جاننے والا اور بڑا بردبار ہے۔ یہ بات تو طے ہے، اور آگے بھی سن لو کہ جس شخص نے کسی کو بدلے میں اتنی ہی تکلیف پہنچائی جتنی کہ اس کو پہنچائی تھی، اس کے بعد پھر اس نے زیادتی کی تو اللہ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ یقین رکھو کہ اللہ بہت معاف کرنے والا اور بہت بخشنے والا ہے۔ تو یہاں کل بھی گزرا ہے نا ڈیٹیل کے اگر آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرتا ہے یا ظلم کرتا ہے تو اتنا ہی اس سے بدلہ لو جتنا اس نے کیا، لیکن اگر اس سے زیادہ کرو گے تو وہ مظلوم ہو جائے گا، تم ظالم ہو جاؤ گے، اور اگر معاف کر دو تو اللہ کو معاف کرنا زیادہ پسند ہے۔ آیت نمبر 61 سے 64 تک ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ کی قدرت اتنی بڑی ہے کہ وہ رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے، اس لیے کہ ہر بات سنتا، ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے، اور یہ اسے چھوڑ کر جن چیزوں کی عبادت کرتے ہیں وہ سب باطل ہیں، اور اللہ ہی ہے وہ جس کی شان بھی اونچی ہے، رتبہ بھی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا جس سے زمین سرسبز ہو جاتی ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اللہ بڑا مہربان، ہر بات سے باخبر ہے۔ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمینوں میں ہے سب اسی کا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ۔ سب اسی کا، اور یقین رکھو کہ اللہ ہی وہ ذات ہے جو سب سے بے نیاز اور بذات خود تعریف کے قابل ہے۔ آگے دیکھیے آیت نمبر 65 سے 68 تک ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے زمین کی ساری چیزیں تمہارے کام میں لگا رکھی ہیں، اور وہ کشتیاں بھی جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور اس نے آسمان کو اس طرح تھام رکھا ہے کہ وہ اس کی اجازت کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ لوگوں کے ساتھ شفقت کا برتاؤ کرنے والا بڑا مہربان ہے، اور وہی ہے جس نے تمہیں زندگی دی، پھر وہی تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں زندگی دے گا۔ واقعی انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ان الانسان لکفور، انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ ہم نے ہر امت کے لوگوں کے لیے عبادت کا ایک طریقہ مقرر کیا ہے جس کے مطابق وہ عبادت کرتے ہیں، لہٰذا اے پیغمبر لوگوں کو تم سے اس معاملے میں جھگڑا نہیں کرنا چاہیے، اور تم اپنے پروردگار کی طرف دعوت دیتے رہو، تم یقیناً سیدھے راستے پہ ہو۔ وَإِن جَادَلُوكَ فَقُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ، اور اگر وہ تم سے جھگڑا کریں تو کہہ دو جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اسے خوب جانتا ہے۔ آیت نمبر 69 سے 72 تک۔ اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے گا جن میں تم اختلاف کیا کرتے ہو۔ کیا تم نہیں جانتے کہ آسمان اور زمین کی تمام چیزیں اللہ کے علم میں ہیں؟ یہ سب باتیں ایک کتاب میں محفوظ ہیں۔ بے شک یہ سارے کام اللہ کے لیے بہت آسان ہیں، اور یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جن کے معبود ہونے کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور خود ان لوگوں کو بھی اس کے بارے میں کوئی علم حاصل نہیں، اور ان ظالموں کا آخرت میں کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ان کو ہماری آیتیں پوری کی پوری وضاحت کے ساتھ سنائی جاتی ہیں تو تم ان کافروں کے چہروں پر ناگواری کے اثرات صاف پہچان لیتے ہو۔ ایسا لگتا ہے کہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو انہیں ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں، یعنی دین والوں کے دشمن ہو جاتے ہیں جو انہیں قرآن سناتے ہیں یا دین کی بات بتاتے ہیں۔ کہہ دو کہ لوگوں کیا تمہیں ایسی چیز میں بتلا دوں؟
कुल अफ़उनब्बिउकुम बशीरम मिन ज़ालिकुम अन्नार वअदहा अल्लाहु अल्लज़ीना कफ़रू बिइसल मसीर। क्या मैं तुम्हें ऐसी चीज़ ना बता दूं जो इन सब से ज़्यादा नागवार है? आग अल्लाह ने काफ़रों से इसका वादा कर रखा है और वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। आगे देखिए आयत नंबर 77 तक देखिए। आयत नंबर 74 से 77 लोगों एक मिसाल बयान की जा रही है, अब उसे कान लगाकर सुनो। तुम लोग अल्लाह को छोड़कर जिन जिन को दुआ मांगने के लिए पुकारते हो, वो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकते, चाहे इस काम के लिए सब के सब इकट्ठे हो जाएं। ये भी अल्लाह ताला ने एक चैलेंज किया था ना कि सारी दुनिया के लोग भी मिलकर इकट्ठे हो जाएं तो वो एक मक्खी भी नहीं बना सकते, और इस चैलेंज को आज तक जो है वो कोई एक्सेप्ट नहीं कर सका। छीन कर ले जाए तो वो उसे छुड़ा भी नहीं सकते, ऐसा दुआ मांगने वाला भी बूद और जिससे दुआ मांगी जाए वो भी। उन लोगों ने अल्लाह की ठीक ठीक कदर पहचानी ही नहीं, जैसा कि उसका बमा कदरुल्लाह हक़्क़ कदर ही। बहुत खूबसूरत आयत है ना कि इस आयत को सुन के रोने को दिल चाहता है। वाकई हमने अपनी ज़िंदगियां गुजार दी और सारी ज़िंदगी हम लगे रहे दुनिया 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 के पीछे भागते रहे, लेकिन जिसकी कदर पहचाननी चाहिए थी हमने उसकी कदर उस तरह पहचानी नहीं। आज जब ज़िंदगी आखिरी उसको पहुंच रही है तो यूँ लगता है कि हमने अपनी ज़िंदगी में कितना कुछ खोया, और अल्लाह ताला के लिए जो कुछ हमें करना चाहिए था वो हमने कुछ भी नहीं किया। अल्लाह ताला हमें अपनी कदर अब भी अता फ़रमा दे मरने से पहले। हकीकत ये है कि अल्लाह क़ुव्वत का मालिक भी है, इक़्तिदार का मालिक भी। अल्लाह फ़रिश्तों में से भी अपना पैगाम पहुँचाने वाले मुंतखब करता है, इंसानों में से भी। यकीनन अल्लाह हर चीज़ का सुनने वाला और जानने वाला है, वो उनके आगे और पीछे की सारी बातों को जानता है, और अल्लाह ही पर तमाम मामलात का दारो मदार है। ए ईमान वालो, या अय्युहल्लज़ीना आमनू वस्जुदू अबुदू रब्बकुम वफ़अलुल खैरा लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ए ईमान वालो, रुकू करो और सजदा करो और अपने परवरदिगार की बंदगी करो और भलाई के काम करो ताकि तुम्हें फला नसीब हो जाए। वही एक पैगाम पूरे कुरान में पीछे से पढ़ते आ रहे हैं ना, एक ही बार बार कि नमाज़ों की पाबंदी करो, अपने रब की इबादत करो, भलाई के काम करो यानी नेकी के काम करो, बुराई से रोको ताकि तुम कामयाब हो जाओ। आगे देखिए आयत नंबर 78 को देख लीजिएगा। इस पूरी आयत को ही हम देख लेते हैं। वजाहिदु फिल हक़्क़ि हक़्क़ जिहादिही वज्तबाअकुम वमा जअल अलैकुम फिद्दीन मिन हरज मिल्लत अबीकुम इब्राहीम हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीना मिन क़ब्लु व फ़ी हाज़ा लियकून रसूल शहीदन अलैकुम व तकूनु शुहदाअ अलन्नास फ़अक़ीमुस्सलात व आतुज़्ज़कात वअतसिमू बिल्लाह हुवा मौलाकुम फ़निअमल मौला व निअमन नसीर। और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो जैसा कि जिहाद का हक़ है, उसने तुम्हें अपने दीन के लिए मुंतखब कर लिया है और तुम पर दीन के मामले में कोई तंगी नहीं रखी। अपने बाप इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन को मज़बूती से थाम लो, और उसने पहले भी तुम्हारा नाम मुस्लिम रखा और इस कुरान में भी, ताकि ये रसूल तुम्हारे लिए गवाह बन जाएं और तुम दूसरे लोगों के लिए गवाह बनो। लिहाजा नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह को मज़बूती से थामे रखो, वो तुम्हारा रखवाला है। देखो कितना अच्छा मौला है और कितना अच्छा तुम्हारा मददगार है। नेमल मौला व नेमन नसीर। बेहतरीन अल्लाह ताला के कलमात। और देखें इसमें एक चीज़ बस आपको एंड में और बताती चलूँ कि आज जितना फ़ितनों का दौर है और जितनी फ़िरक़ावारियत हो गई है, हम हर एक जो है फ़िरक़ों में बढ़ गया है। और बहुत ही वैसी हदीस का मफ़हूम था कि यहूद व नसारा 72 में और मोमिन जो है वो कितने में, मुसलमान 73 फ़िरक़ों में बढ़ जाएंगे। आज वही दौर है। तो देखें कुरान ने हमारा नाम रख दिया और आखिर में भी अल्लाह ताला ने यहाँ हमें यही नाम बता दिया कि तुम इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दीन पर कायम रहो, जो सिर्फ़ यकसू मुसलमान थे, अग्नि मुस्लिम थे। तो तुमसे भी जब कोई पूछे तो तुम यही कहो कि आपसे कोई पूछे आप कौन है तो आप कहें मैं मुस्लिम हूँ। अल्लाह ने हमारा यही नाम रखा है, फ़िरक़ावारियत के हवाले से हमारे नाम नहीं रखे। तो अल्लाह ताला हमें इस फ़िरक़ावारियत से आज़ाद करे और अल्लाह ताला हमें ख़ालिस अपने बंदों में शामिल कर ले और हमें इन तमाम बातों पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अब पिछले पारे थोड़े से आप समझ रहे थे कि ज़्यादा हो गए, कुछ भारी हो गए, लेकिन अब हल्के हो गए और हो जाएंगे मज़ीद। ये थोड़ा सा क्योंकि वो किस्से हैं जो नबियों के पैगम्बरों के चल रहे हैं, उनकी रेपिटेशन इतनी बार बार मैं डिटेल में नहीं कर रही। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बहुत कम हुआ है, 3 पार्ट भी मुकम्मल नहीं हुए। अल्लाह ताला इन पे अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी बिनिअमतिही
تتم الصالحات وصلی اللہ تعالی علی نبینا الکریم صلی اللہ علیہ وسلم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم اللہم لک الحمد کلہ ولک الشکر کلہ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔